So there are some questions on the poem Ode to the Nightingale by John Keats. There are some questions which are very important, which you need to know. So the first question, let us discuss. And this is an open forum, open discussion. Anybody can answer the question. I'm not pointing out to any one person. कोई भी answer कर सकता है. Raise your hands and start answering. So why is the poet John Keats sad? Why is he sad? Okay. The poet John Keats is a sad person because he had lost his parents at a very early age. When he was 10, 12 years old, his father died. And after some time, his mother died. And soon after, his younger brother also died. So losing family members can be a depression for anyone. So John Keats was very sad because he had lost his parents. You can convert this question if it is a short answer question, very short answer question, because he lost his parents. Short answer question. After losing his parents, his younger brother also died. That is why he was sad. And short answer questions, थोड़ा बड़ा बनाएंगे उसको. So John Keats studied medicine, but he wanted to become a writer. But soon after losing his parents and his younger brother, he went in a depression. And he was very sad because he was alone in the family now. And that made him so depressed that he stopped writing. So इसी question को very short answer and long answer. Long answer क्या? Answer can be for 2 marks. Very short answer, 2 marks. तो 2 marks के लिए आप कितने लिखेंगे? उतना ही लिखेंगे जो आपको लिखना है, जितना लिखना चाहिए बस. और अगर MCQ में आ जाता है, John Keats was sad because he wanted to go to his friend's place. Option A. Option B. And it can be anything. ऑप्शंस में आप अगर बिल्कुल तभी आप कर पाएंगे MCQs जब आप पूरी चीज को जानेंगे आप. Otherwise, MCQs are just not possible. So, why does John Keats stop writing? Same question follow हो जाएगा. John Keats was very sad, and after the death of his younger brother, he was completely broken. वो टूट चुके थे. He was completely shattered. बिखर जाना, shattered, broken. कुछ वर्ड्स है जो कि मैं डाल देती हूँ. He was completely broken. Completely broken. एकदम से वो टूट गए थे, बिखर गए थे. वोकैबुलरी आप डालते जाइए बिकॉज क्लास में आपको हम हेल्प कर दे रहे हैं. या आप ही वाज शैटर्ड. शैटर्ड मतलब वो बिल्कुल बिखर, शैटर्ड हो गए थे, चकनाचूर हो जाना, सपने का खत्म हो जाना, सब चीज टूट जाना. तो दी ये 2 वर्ड्स लेकर के आप अपना कोई आंसर बना सकते हैं. ही वाज कंप्लीटली शैटर्ड, ही वाज ब्रोकन, ही वाज डिप्रेस्ड.
सैड, सैड का सिनोनिम्स क्या क्या है, कोई बता सकता है? आप बताइए। सैड, एक वर्ड को बार बार रिपीट क्यों करेंगे हम? दूसरे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सैड का क्या है? सैड, अनहैप्पी, फॉरलॉर्न। लिटरेचर पढ़ने का मतलब, अपसेट, यस व्हाट? अपसेट, यस। फॉर, सॉरी, लिटरेचर पढ़ने के फायदे हैं कि वर्ड्स वोकैबुलरी बहुत अपडेट हो जाते हैं आपको, और अब बेहतर लिखिएगा, बेहतर बोलिएगा भी। ही वॉज फॉरलॉर्न, ही वॉज सैड, ये सब सैड का है, एक डिप्रेस्ड, फॉरलॉर्न, सैड, sorrowful, sorrowful, gloomy. So all these words you can use for sadness, और बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं। और अगर idioms लाना चाहेंगे तो he was under the cloud, he was under the cloud, मतलब दुख के बादल के अंदर, under the cloud। तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। Why was he sad? और अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए डू नॉट रिपीट वन वर्ड, कीप ऑन चेंजिंग एंड अपडेट करिए वोकैबुलरी। लिटरेचर पढ़ने के फायदे दो बहुत ज्यादा हैं। सबसे है कि आप, यू विल बी एबल टू स्पीक बेटर, यू विल बी एबल टू राइट बेटर। So now the next question is, why does he call the nightingale a happy lot? Happy lot, इसका पहले समझिए, इस फ्रेज का मतलब समझिए, ये पोइट्री में आपको आ रहा है। He calls them a happy lot, it means एक झुंड उनका है जो कि खुश रहता है। लॉट, अ लॉट मीन्स एक चिड़ियों का जो समूह, एक झुंड है, बर्ड्स है, ये लोग खुश रहते हैं। क्यों खुश, इनको खुश क्यों दे समझता है? दे आर अ हैप्पी लॉट। मैम, आंसर भी उसने किया हुआ है। मैम, हाँ यस। मैम ये आपको डिस्प्ले शो नहीं, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा, नहीं दिख रहा मैम, तो हम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं? आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं मैम। हाँ मैम, किसको नहीं दिख रहा भाई? आ गया मैम, ओके। अभी नहीं शो कर रहा था मैम, इसलिए। So he was sorry. Why does he call the nightingale a happy lot? वो कहते हैं कि I am not jealous of you. I am not jealous of your happiness. तुम्हारी खुशी से मैं जलता थोड़ी हूँ। तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी से मुझे कोई जलन नहीं है। I am not jealous, but I want to be happy with you. I am happy for your happiness. तेरी खुशी में मैं भी खुश हूँ। एंड वो कहते हैं दे आर अ हैप्पी लॉट, वो खुश रहते हैं इसलिए कि वो सारा दिन गाना गाते रहते हैं। बिकॉज he calls them a happy lot because they sit on trees. आंसर भी पोएट्री में है। Because they sit on trees and they sing from morning till night. सुबह से रात शाम तक वो गाना गाते रहते हैं। और क्या गाते हैं, जो भी उनका सॉन्ग होता है, मेलोडियस प्लॉट, मतलब बहुत ही सुरीली आवाज में गाते हैं। तो दे आर हैप्पी बिकॉज they are sitting on top of the trees and they are singing from morning till night, and they are singing of summer, they are singing of spring, they are singing of green fields, whatever things that which they see,
जो कुछ भी नजर उनके सामने रहती है वो उसके उसी पर वो गाना बनाते हैं और वो खुश होकर गाती रहती है. So this is the reason why he calls them happy lot. अब आप देखिए कोयल जो आप उनका गाना सुनते हैं तो आपको लगता है वो सुरी गाना कौन गाता है, खुश होता है तो इंसान गाना गाता है. तो बर्ड्स को तो कोई डिप्रेशन नहीं होता है, जैसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई उदास हुआ तो भी गाना गाता है. लेकिन आमतौर पर आप गाना कब गाएंगे, आप बहुत दुखी होंगे तो गाना नहीं गाएंगे, गाना रोना आएगा. तो जब आप खुश होते हैं तो आप गुनगुनाना शुरू करते हैं, राइट. So because they are singing all the day, all the time, they are sitting on top of the trees and they are singing from morning till night. And they are singing of green fields, they are singing of spring, they are singing of summer. So they are singing of everything, what they are seeing, and they are singing of. It is like गॉड की क्रिएटिविटी जो देखते हैं वो लोग उसी पर वो लोग गाना बना देते हैं और खुश होके गाना गाते हैं. Did you understand? So now can you answer me? Why does he call the nightingale a happy lot? Because they sit on tree tops and sing all day. आप लिखो ना, मैं तो लिखवा ही रही हूँ. They sing of spring, summer, green fields. They sing melodiously, सुरीली आवाज में गाते हैं. They sing full throated, मतलब loudly. मैं आपको कुछ वोकैबुलरी दे रही हूँ लेकिन आप सेंटेंसेस आप खुद के बनाएंगे, ठीक है. आई एम गिविंग यू दी हेल्प. शायद इसी तरह से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होती है आपको शुरू से तो आपको दिक्कत नहीं होती. Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर नहीं होने से प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट. हाउ डज ही, तो ठीक हो गया ना. ये सब शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स सब कवर कर लेगा. आपको शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट के लिए जो लिखना है. ओके. दे सिंग फुल थ्रोटेड मतलब पूरे गले से, मतलब गला खोल के गाती है, ठीक है. और इतनी तेज आवाज में गाती है, कोई गाती है तो फूकती है तो सब सुनाई पड़ता है कि कौन सा, कहीं भी रहो तो आवाज आती रहती है कहीं ना कहीं से. तो फुल थ्रोटेड, ये सब वर्ड्स ऑलरेडी लिया गया है, पोइट्री में भी डाली गई है. तो हाउ डज ही रिज्यूम राइटिंग, कैसे लिखना शुरू किया उन्होंने? ऑन लिसनिंग टू द बर्ड सिंगिंग.
as he was in acute depression. Acute का मतलब होता है बहुत ज्यादा. Acute depression. As he was in acute depression, he had shifted to his friend's house nearby. Nearby का मतलब होता है पास में ही, nearby. So as he was in acute depression, he had shifted to his friends nearby. So one afternoon, when he was sitting outside on a bench, he heard so as he was sitting outside on a bench, he heard a nightingale singing. And he forgot his pain. The song of the nightingale inspired him to resume writing. It can be long answer, it can be very short answer, it can be very long answer also. देखिए, what I know is when you indulge in question answer, the concept is completely clear. I can give you 100 questions on O to the Nightingale. Yes, writing skills तो आपको टीचर से सीखना होगा ना. उनकी थॉट्स क्या है, वो कैसे, हम लोग क्या वो थॉट उनके समझाते हैं आपको और अपनी स्टाइल आपको देते हैं. टीचर्स विल ट्राई टू गिव यू देयर स्किल. By only just simply reading it or explaining will not help, but you will have to know the structures, how it is written. That is why we say, for if you want to improve your English, read, बहुत पढ़िए. तो इससे अच्छा अच्छी और क्या हो सकती है बात. जो टीचर्स जो कि गूगल पे नहीं, कहीं से भी नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने है और ये एज अ वर्कशॉप हम कर रहे हैं ताकि अभी देख रहे हैं कि मैं आगे पीछे कुछ कंटेंट नहीं है, बट इट इज देयर. और हो सकता है कि कल कुछ पूछेंगे तो कुछ और लैंग्वेज हो जाएगा. तो इट इज क्वाइट श्योर, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिस वक्त बैठ के लिखते हैं उस वक्त कुछ और विचार आते हैं, तो इट कैन चेंज, वेरिएशन हो सकता है, बट कंटेंट बदलेगा नहीं, कंटेंट यही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. why does he not like the human world? Now somebody please answer this question. इंसानों की दुनिया से उसको परेशानी क्यों है, वो क्यों भागना चाहता है इंसानों की दुनिया से?
क्या था यहाँ पे, क्या था? नहीं, वो तो उसका था ना, लेकिन आम तौर पे इंसानों की दुनिया के बारे में वो क्या बोलते हैं? नहीं, वो नाइटिंगेल, वो तो आंसर नहीं इसका हुआ कि नाइटिंगेल के वर्ल्ड में क्यों जाना चाहते हैं अपनी दुनिया को छोड़ के, इंसानों की दुनिया को छोड़ करके वो उनकी दुनिया में क्यों समाना चाहते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं इंसानों की दुनिया से? नहीं नहीं, यहाँ तो पोइट अपने बारे में बात कर रहा है ना। वाई डज ही नॉट लाइक द ह्यूमन वर्ल्ड? कमाने का तो फियर तुम, अच्छा ये लोग, यही बात हो सकती है, लिटरेचर में तुमको ऑप्शन मिल जाता है कि इंसानों की दुनिया क्या है, कमाना है, पढ़ना है, स्ट्रगल करना है, ये सब इंसानों की दुनिया है। तो जॉन कीट्स का कुछ और, तुम्हारी सोच कुछ और हो गई है कि ठीक है कि हाँ, वर्ड्सवर्थ का। नहीं 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 नहीं, वो कंसेप्ट सही नहीं है। मतलब वो पोएट अभी तो डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बात आ गई तुम कह रहे हैं वो जब बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, A slumber did my spirit feel, मतलब पहले की बात बोल रहे हैं कि कहीं वो खोए हुए थे, कहीं इतने इन्वॉल्व थे कि उनको आगे पीछे क्या हो रहा है मतलब नहीं था। जैसे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, they were so much in love that they did not know what is happening। और जैसे लैला मजनू, अब मजनू ने कितने पत्थर खाए होंगे, उनको चोट भी लगती थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो वहां पर बैठे रहेंगे, पत्थर खाते रहेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। तो उनको इंसानों की दुनिया से वो डर, उनको कोई डर नहीं था कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे पीटेंगे, कोई मतलब नहीं, पीटेंगे तो पीटेंगे, मुझे डर नहीं है। Similarly, Wordsworth was so much lost somewhere that he had no human fear। कि क्या हो रहा है अगल बगल, आई डोंट नो, हो रहा तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अब किसी ने कहा कि लूसी वाज हिज सिस्टर, किसी ने कहा लूसी वाज एन इमेजिनरी गर्ल, अब किसी ने कहा लूसी वाज हिज बिलवेड। तो लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट इज ह्यूमन फियर्स। जब इंसान कहीं इन्वॉल्व हो जाता है तो इंसानी जो फितरत होती है, इंसानों की जो फितरत होती है कि जो डर लगता है, तो इंसानी डर खत्म हो जाता है। तो भी डिस्कस कर देंगे उसको भी। तो या तो व्हाई डज ही नॉट लाइक द ह्यूमन वर्ल्ड? बिकॉज जब इंसान मिलते हैं, पर हिंदी में समझ लीजिए इसको, जब इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, दिस इज इन द पोइट्री, दे ओनली कंप्लेन। मैं बुलेट्स में डाल रही हूँ, आप सेंटेंस में बनाइए। दे ओनली कंप्लेन। They speak about sickness। Of depression, they only speak of sickness, of depression, of illness, of growing, becoming old। of losing beauty। तो जब मिलते हैं
तो उनके पास कोई अच्छी बात करने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी दिक्कत, अपनी अपनी परेशानी के बारे में, अपने डिप्रेशन के बारे में, और कोई अच्छी बात करने के लिए है नहीं। तो जब मिलेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे वो लोग, इसीलिए वो इंसानों की दुनिया से वो भागना चाहते हैं। हाँ, अच्छी बात कुछ उन लोगों के लिए कहनी है, आने के लिए कोई, आने वाली कोई खुशी नहीं देगी। आने वाला तो कोई यंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो एज के साथ वो मर जाएगा, तो और टाइम के साथ ब्यूटी भी खत्म हो जाएगी। तो आने आने वाले दिनों में फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा दे रहा है आपको। फ्यूचर हमेशा ही डार्क रहता है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ये हम नहीं करें, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बाकी छोड़ दें क्या? ए, दो और कर लो इसको। Why does he want to die? मैम टाइम हो गया तो जिसको जाना है जाओ। Why does he want to die? मैम नहीं नहीं नहीं, वो सब सारा वही है। Why does he not like the human world? यही रिपीट हो जाएगा। Why does he want to die? हाँ, because there's nothing, there's no happiness to live for. Because there is no happiness to live for, or nothing to look forward to. और नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब आने वाले कोई अच्छा कुछ उम्मीद करना बेकार है। बिकॉज जिंदगी, बीमारी, परेशानी, ओल्ड हो जाना, फिर इतना दुबला हो जाना, हाँ, जब तक जिंदगी है धीरे 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 शरीर भी खत्म होता जाता है, और अंत में क्या होता है, सारे बाल झड़ जाएंगे, सारे दांत निकल जाएंगे, और तुम बिल्कुल भूत की इंसान भूत की तरह पतला हो जाता है। वो गाना है ना, किसी खुशी को इंतजार नहीं, खुशी को, ऐसे कुछ है। मैम वहाँ पे ओ छूट गया मैम, बिकॉज हेयर इज नो हैप्पीनेस टू। बिकॉज देयर इज नो हैप्पीनेस यस टू मैम, यस मैम। टू लिव फॉर, जी मैम। जीने के लिए कोई खुशी नहीं है, और क्या कुछ उम्मीद भी नहीं है। नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज की आशा की जा सके, किसी अच्छे चीज के होने की आशा की जा सके, वो भी नहीं है। नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, हम कहते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीट योर फ्रेंड। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई डज ही थिंक द नाइटिंगेल इज नो ऑर्डिनरी बर्ड? So why does he think that he is no ordinary bird? Because it has the power to heal human mind and depression. Because वो खुद डिप्रेस को हील हो चुके थे। What do you mean by dryads?
फीमेल स्पिरिट्स, फीमेल आत्माएं हैं जो who live on fields. ये ऊपर से भेजी हुई आत्माएं हैं या एंजल्स हैं, परियां हैं जो कि भगवान ने भेजी है और आपको ह्यूमन बीइंग को हील करने के लिए, माइंड को हील करने के लिए। अब आपका तो शायद सेकंड ईयर क्लास शुरू होगा आपका, क्या एग्जाम के बाद। और ये क्वेश्चंस मैं आपको कहाँ दे दूं पता नहीं। तो ये हम दे दें वो इसी को पूछेंगे फिर। मैम इसको PDF सेंड कर दीजिए इसका। वो तो कर देंगे लेकिन तुम पढ़ोगे कब? नहीं पढ़े मैम, आपको अगले क्लास में सुना रहा हूँ। ठीक है।